Hello and welcome at Exam Zone 24/7. Today we will be discussing about in this video we will see how a low mark scorer can get final selection in SBI CBO 2025 as it happened earlier. See, many of the candidates will be rejected during the screening process of SBI as they might not be having such qualifications as they said, mm, or as they ask, like the profile, the profile, okay, as they ask the profile of the candidate, okay. Profile means they actually there should be scale 1 equivalent, scale 1 profile of SBI. If you are not having, and this is related to your job profile. Suppose if you are managing only cash, means cash operations, or only account opening, which usually a clerk does in not only in SBI, in any public sector bank. Okay, then you will be disregarded for the selection, and you will be screened if you have such profile. Okay, so then a number of candidates, even one of the students of Exam Zone 24/7 last to last year was also rejected. However, he was not a regular student. He enrolled for the interview, but even interview they have allowed them, but later came for not getting selected. I also said him that you code that RTI and etc., but nothing uh, made any fancy of him, and it was ultimately a lost the fate. Further, if you are only in the lead collection, okay, if you are in the only in the lead generation, okay, in the lead generation means lead generation or document collection, then also you will be disregarded for the selection. तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसमें आपको देखना है कि आप कुछ कैंडिडेट्स ऐसे चले जाएंगे. नाउ वी गो थ्रू द वाई द हाउ a low mark scorer in written of SBI CBO 2025 may get final selection easily. Okay, see, you will see that the written marks is of 170 marks.
Okay, these 170 marks will be normalized to 75, means 75 marks will be there for 170 marks. Okay, if you calculate this with the percentage, actual percentage, then it will be come around into 100, then it will come around, means not the around, it is exactly 44.11%. Means if there has been a written marks of written exam of 100 marks, then only 44 marks will be considered for this. Although they will take it as a 75, that is another thing. Do not consider it as 75%, because they are actually taking 44% as treating it as a 75 marks. Okay, and interview 50% out of 25, converting to 25 normalized marks of 50 marks, then you will see that 25 out of 50 as conversion rate, it is the 50%. Means the marks in the interview are completely approximate 6% higher, 6% higher weightage. मीन्स इंटरव्यू के मार्क्स वाइज अगर आप देखोगे कन्वर्जन के वाइज, जैसे कि 50 मार्क्स का इंटरव्यू है उसको 25 मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 170 मार्क्स का रिटेन है इसको 75 मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि रिटेन के मार्क्स एक्चुअली कम काउंट हो रहे हैं, 44% के इक्विवेलेंट लिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर 50% के इक्विवेलेंट लिए जा रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू, कोई भी ये बताया कि नहीं, अभी तक ऐसा किसी ने एनालिसिस पोस्ट भी नहीं किया होगा, बट बेटर यू शेयर दिस, इफ यू फाइंड इट यूजफुल यू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर इन ट्रॉम। सी, इस बार का पेपर क्या था कि बाकी पेपर बैंकिंग वाज इजी, इंग्लिश वाज आल्सो अप्रोक्सीमेट इजी, नॉट वेरी टफ। ओके, द मेन प्रॉब्लम वाज somewhat reasoning, the last portion which was somewhat new, and further reasoning was in computer. So further the GA section, in which there was no recent, very recent current affairs, very less recent current affairs was there, and the news related to banking economy was also less. Further, not only to this, repeaters were benefited. रिपीटर्स का मतलब ये नहीं कि जिन्होंने लास्ट ईयर दिया था या उसके पहले, जिन्होंने कंटिन्यूअस स्टडी अपनी जारी रखी थी। रिपीटर्स मीन्स जिसकी स्टडी कंटिन्यू थी। आई एम नॉट टेकिंग रिपीटर एज those persons who are attempting the exam again, because there are a number of persons who are attempting the exam again and again, but they are not getting selected. I am not talking about that repeaters or other things. The repeaters here, in my words, okay, mean only the person who were in continued preparation. तो उनके पास क्या था कि जो पुराने 6 मंथ्स एगो वाले भी, पहले वाले भी थे। हालांकि आरबीआई सर्कुलर हमने पहले से ही बोला था दिसंबर से भी चालू करो तो बेटर है, तो दैट वाज बेटर। और बैंकिंग तो डायरेक्ट कट टू कट आया था, उसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं थी। जनरल बैंकिंग वाज वेरी इजी। ओके, नाउ विच वन इज इम्पोर्टेंट? सी, वी सी, ओके, we see how, what was the written as per advertisement. We will go through the advertisement, what is the written and how it will be. Then we will see whether written is more important for selection or interview is more important for selection. Okay, let us go through exam guidelines and then
Okay. This is your exam and test guidelines which were mentioned during the advertisement, that the English language for this 30 marks, 30 minutes, banking knowledge 40 minutes. It was very easy now to say. It was a little bit tough general this, and there were total 120 marks. 120 marks for this objective and descriptive, total 50. It will be total 170 marks. A number of students scored very good marks in these 50. A little bit. See, if you have 120 of this and 50 of this, if there is some less marks, you may increase here. Okay, that will not make much difference. और इस बार भी आप अगर देखोगे तो किसी का बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस नहीं है कि इस तरह से आप ये बोल पाओ कि मेरा ये बिल्कुल खराब हो गया और ये भी खराब हो गया. ओके, नाउ देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स. इसका मतलब है कि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव डन इन द एग्जाम. ओके, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर एग्जाम. अगर किसी का कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का छूट भी गया या 5 मार्क्स से हुआ, तो ऐसा नहीं है कि इसको ये सेक्शनल में कट ऑफ ले आना है. सेक्शनल मार्क्स इसमें नहीं है, बट इंटरव्यू में सेक्शनल है. मतलब आपको एक बार रिटन और इंटरव्यू, तो रिटन में पास होना जरूरी है प्लस इंटरव्यू में भी पास होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि आपका इफ यू हैव ए गुड मार्क्स इन द रिटन एंड यू हैव फेल्ड इन इंटरव्यू, okay, then it will not be considered for the selection. Failed in interview, a number of candidates has failed. I will be giving some examples during the session, you will see. Now we will calculate, now as per advertisement we will calculate this marks secured by the candidate in the online test. Okay, एसबीआई बोल रहा है कि भाई मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट out of 170 marks are converted to out of 75 marks, and interview scores of the candidate out of 50 marks are converted to out of 25 marks. सी, ये क्लियर कट बोल रहा है जो हमने पहले किया था. मतलब कि जो भी अगर आपने 170 मार्क्स जितने भी हैं उसको 75 में कन्वर्ट करेगा. मीन्स 75 मार्क्स विल बी इक्वल टू, मीन्स 170 मार्क्स will be equivalent to 75 marks. Okay, in this way 75 by 170 into 100 if you will convert, then it will be 44.11%. Means if the written was for 100 marks for written, there will be only 44 marks allotted for this written exam. Now in the same way as it is saying that interview marks, uh, interview marks will be conducted for the 50 marks, that will be converted to 25 marks. Okay, in this way if it is converted to 100 marks, then it will be equal to 50%. You clearly say that written has a less weightage as compared to interview. Okay, let us see from where it came. Okay, written का जो वेटेज है, okay, means 50 out of 120. You will also see here that is 41% is around the weightage of this. 50 out of, you better to say 170, you say, then 29% weightage is of C, is of written. For means descriptive paper C, but this is not separate, so we will be clubbing into one, that is 170 and 75. Here is
25 and 50. You see clearly that there is a difference of 50 and 44.11. That will be 0.99. That will be equal to 5. Around 6% is more weightage. Okay. 6% more weightage for 6% more weightage. ओके, फिर से समझा देता हूं। देखो आपको क्या बोला है इसने कि 75 मार्क्स बनाए जाएंगे किससे, 170 मार्क्स से। तो 1 मार्क्स अगर का पेपर होता तो आपको 170/75 होता। अभी अभी इसको 100 मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो 100 मार्क्स में इसी को परसेंटेज बोलते हैं। 75 इंटू 100 करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 44.11%। ओके, नाउ अब हम रिटेन का देखते हैं। 25 मार्क्स में कन्वर्ट करेगा 50 मार्क्स को, देन 1 मार्क्स विल बी इक्वल टू 50 by 25, then the 100 will be equal to 50 by 25 into 100, that is equal to again 50%. The difference is around 6%, 5.99 is there, that is equal to 6%. You see that interview has a higher selection percentage. अच्छा, सी SBI did not mention actually any passing criteria, but it is 40% for general and 5% less, 30%, 5% others. Generally it happens. Okay, if it is a 45% for general, then it will be 40% from this is 50% for general, then it will be equal to 45, 5% less for other reserve categories. Okay, तो हमने ये देखा कि भाई इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं आपके, उनका परसेंटेज वाइज वेटेज ज्यादा है। मतलब अगर आप इंटरव्यू में थोड़ा सा ज्यादा भी, 1 मार्क्स भी ज्यादा पाते हो तो वो आपके इंटरव्यू रिटन के 1 मार्क्स से कहीं ज्यादा है, फॉर बेटर है। फर्दर इंटरव्यू कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि 25 है, इसको 50, ओके, 50 मार्क्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो ये फिर से 50% आएगा, तो 50% मार्क्स ये हमने पहले ही देख लिया है। लेट अस कंपेयर द रिजल्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड फेल्ड कैंडिडेट्स। सी दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट। ओके, नेम वाइज details. We will see how getting high marks in written is not a guarantee for getting final selection SBI CBO एग्जाम। तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज दे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फेल नहीं कर सकते। नो नो नो, दे में फेल यू। और अगर आपको एक बार फेल मार कर दिया तो आपका काम खत्म, आपकी पूरी पढ़ाई की सब कुछ गई। रिटन में फेल होना उतना पेनफुल नहीं है, ओके, जितना पेनफुल आपका इंटरव्यू में होना। अगर आपने इंटरव्यू में फेल हुए तो भाई बात खत्म है, आपका रिटन तो गया ही, चाहे जितने मार्क्स पाए थे। और आप रिटन में बहुत कम मार्क्स पाए और इंटरव्यू में बहुत अच्छा किए तो आपके चांसेस वेरी वेरी हाई हैं कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, चलो देखते हैं। ये है अरविंद चौहान की और ये है गणेश घायवट की, जिन्होंने इन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था और इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया था। अरविंद चौहान जी ने मुंबई से अप्लाई किया था और इन्होंने हैदराबाद से अप्लाई किया था। रिटन एग्जाम अच्छा है, रियली बहुत अच्छा है। 108 मार्क्स इन्होंने पाए हैं 170 में। ओके, तो एक तरह से आप ये देखो अगर कि
8 मार्क्स आउट ऑफ 170, तो ये अराउंड 63.5% मार्क्स हैं। ठीक है। और यहीं गणेश जी का अगर हम देखें तो इन्होंने केवल 91 मार्क्स पाए हैं 170 में, दैट इज ऑलमोस्ट 53.50% इन द रेट। ओके, ये क्या है, ये आपका 50 मार्क्स का 120 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव था प्लस 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर था, उसको मिला करके इन दोनों ने ये मार्क्स पाए। अच्छा, इनके नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है 75 में कन्वर्ट किए गए। तो अगर इन्होंने 91 170 में पाए हैं, तो एक मिनट, इन्होंने पाए हैं 91, नहीं, इन्होंने 1 मिनट 108 बाई 170 इंटू 100, जब भी आप इतना करोगे तो ये 63.5% पाए हैं। ओके, तो इस तरह से इसका जब 63.5% निकालोगे तो आपको आएगा, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनके हो गए 47.65। मतलब अगर ये पेपर 75 मार्क्स का होता तो अरविंद चौहान इसमें 47 मार्क्स पाते। इंटरव्यू स्कोर इनको कितना दिया भाई? केवल 17 नंबर दिया। ठीक है। जनरली 40% पासिंग होती है, तो 50 का 40% कितना हुआ? इनको 20 मार्क्स आना चाहिए था। अच्छा देखो, एसबीआई जिसको भी फेल कर रहा है उसको 17 18 19, 17 18 19, और 19 भी नहीं दे रहा है, ज्यादातर 16 17 18 दे रहा है मार्क्स। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में ही फेल कर दिया ना। अब ये देखो, इसका कैटेगरी का कितना था फाइनल? ओके, इतना। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ इनका 47.676, मतलब अगर ये 46.76 भी पाता तो पास हो जाता, लेकिन ये कितना पाया है? उससे नॉर्मलाइज से 10 मार्क्स ज्यादा पाया है। लेकिन ये भी क्या हो गया है, ये बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ और ये बंदा हो गया है फेल। ओके, नॉट सिलेक्टेड, इंटरव्यू नॉट क्वालिफाइड। करेक्ट, देखा। अच्छा, अब आते हैं ये बंदा, इससे तो 108, मतलब इसने लगभग 16 मार्क्स कम पाए। 16 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, 16 मार्क्स कम पाना। लेकिन इसने भाई इंटरव्यू में देखो इसने क्या काम किया भाई। 53, इसका नॉर्मलाइज्ड 40 ही आ रहा है, मतलब इधर 7.65 मार्क्स से ज्यादा पाया हुआ है, लेकिन इसका नॉर्मलाइज्ड 40 ही आ रहा है, 40। लेकिन अभी ये देखो, ये बंदा इंटरव्यू में कितना पाया? और ज्यादातर जो अच्छे बंदे, इवन इफ यू विल गो द कैंडिडेट्स ऑफ एग्जाम जोन 24/7, सम ऑफ द कैंडिडेट्स स्कोर्ड 95% इन इंटरव्यू। ठीक है, तो ये बंदा तो 23 मार्क्स पा गया भाई 25 में से। ठीक है, इंटरव्यू में 46 पा गया। ठीक है, 46 मतलब हो गया 92%, एक तरह से 92% मार्क्स पाया हुआ है। और 92% पाने के बाद, ठीक है, इसका स्कोर बढ़ करके हो गया 63। देखो इधर इसका 18 नंबर ज्यादा है, बट इसका नॉर्मलाइज देख रहे हो कितना हुआ? 56 एंड 4 एंड 3, अराउंड 7 इन नॉर्मलाइज्ड वाले में ज्यादा हो गया, केवल क्योंकि ये इंटरव्यू में हुआ और कट ऑफ से लगभग डबल पे सिलेक्ट हुआ। डबल तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट 1.5 डबल के आसपास ही समझो, 30 1.8 टाइम्स 1.7 टाइम्स, तो इतना ज्यादा वो, अगर वो और भी कम पाता रिटर्न में। अच्छा, ये देखो इसका सिलेक्शन था 36.25। ठीक है, इसने 23 पाया। आ? अब देखो 36.25 और ये 23 इसमें से माइनस कर दो, आएगा 25। यहां पर आ गया 3 यहां पर, मतलब अगर ये यहां पर केवल 13.25 मार्क्स भी पाता नॉर्मलाइज्ड वाला। अच्छा, 13.25 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने का? 75 में, मतलब 75 में अगर 13.25 पाया
तो 170 में निकाल लोगे ना भाई, इतना तो क्वांट आना चाहिए आपको। अगर क्वांट मजबूत नहीं है तो मतलब फिर कैसे कर रहे हो, थोड़ा सा तो आना चाहिए ना क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो अब हम देखते हैं ये कितना कम से कम मार्क्स में सिलेक्शन पा सकता था। डिवाइडेड बाई 75 इंटू 170, मतलब अगर ये इसमें 30 मार्क्स भी पाता ना, ठीक है, 75 में, अगर ये 75 में 13 नंबर पा रहा है तो लगभग डबल है। तो अगर ये 30 मार्क्स भी रिटेन में पाता, हालांकि 91 पाया, तब भी आप देखो इधर इसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये मत सोचो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिटेन में एक्सट्रीमली लो किया, एक्सट्रीमली लो किया। अरविंद चौहान ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया बट फेल्ड इन इंटरव्यू, कोई फायदा नहीं हुआ, इनको फिर से वापस तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर एज चली गई है तो फिर आपको इनको प्राइवेट बैंक से या कहीं पे ही लगना पड़ेगा। गणेश भाई ने अच्छा किया कि इंटरव्यू का इसको, तो वैसे देखो अगर वो 30 मार्क्स भी इंटर रिटेन में पाता ना, तब भी गणेश तो सेलेक्ट ही हो जाता। ठीक है, तो आप रिटेन की चिंता छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। मैंने बताया ना, रिटेन बिल्कुल भूल जाओ। बस रिटेन में आपको पास होना है, बस पास हुए, सिलेक्शन हो गया। एंड वंस यू आर इनरोलिंग इन एग्जाम जोन 24/7, यू विल फाइंड दैट कंप्लीटली, सी, हमारा कोई भी मॉक इंटरव्यू वी डू नॉट शेयर। मॉक इंटरव्यू को आपको ना तो चैनल पे कोई वीडियो मिलेगी, ना हमारी वेबसाइट पे कोई वीडियो मिलेगी, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में हमें कुछ अलग से ऐसी गाइडेंस देनी होती है जिसको हम अभी तक या कभी भी पब्लिक नहीं करना चाहेंगे। तो इफ यू आर थिंकिंग दैट यू मे डू एटलीस्ट एवरेज इन द रिटेन, डू ज्वाइन एंड डू बेटर। तो अभी रिटेन की टेंशन आप छोड़ दो, आप देख रहे हो इंटरव्यू मैटर्स अलॉट। बहुत अच्छा नंबर हो तब भी एसबीआई वाले फेल कर देते हैं, और बहुत कम नंबर हो तब भी पास कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए भाई बंदा जो प्रेजेंटेबल हो, जो प्रेजेंट कर सके। आज के टाइम में मार्केटिंग इज द की टू सक्सेस। तो उस तरह का बंदा चाहिए आपको, उनको केवल पढ़ने वाला बंदा नहीं चाहिए कि वो रट लिया। और उसमें तुम कर क्या रहे हो, बैंकिंग में बहुत कुछ कर दिए। क्या है बैंकिंग में? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ समझने वाला है क्या? अगर आपको सेक्शन याद है तो आप कर लोगे, नहीं याद है नहीं कर पाओगे, कोई लॉजिक नहीं। क्वांट और रीजनिंग मजबूत है आपकी, तो देन ओनली आई बिलीव दैट यू हैव समथिंग इन यू। यस, इफ यू आर नॉट गुड एट क्वांट, then you may be a good banker but do not have any such reasoning or decision making, good decision making. Instant decision making is completely not possible if you are not good at reasoning. So final wordings to you: prepare for interview with obviously exams on 24/7. Have you seen my qualifications? Have you seen my experience? I have started my journey as a PO in public sector bank. Since then, I am working with the only public sector banks. It has been almost a three-third public sector bank I am working with. Then it is only a good, intelligent person can guide you how you will be handling the situations and going through the concepts of presentation, your skills. Okay, देन इफ यू लाइक दिस शेयर, एंड होपफुली अभी आपको कुछ कॉन्फिडेंट लग रहा होगा कि अगर आप 30 मार्क्स भी रिटर्न में पाते हो, देन आल्सो यू हैव ए वेरी फेयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि 30 मार्क्स उन्होंने कट ऑफ नहीं रखा हो, दैट इज अनदर थिंग, बट कट ऑफ कितना है ये उनके ऊपर है। ओके, so there are a number of results with exams on 24/7 of selected candidates. I would not make it public uh, on account of their interest, their our students' confidentiality. So final wordings. Hope you find it useful. Share it and do well in interview. And only text at this number once the result is there.
86, 86, 26. Okay. Have a nice day. Thank you. Okay. And I will share this PDF too.